Hello students, this is Etal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 6, भाषा जाए तो संस्कृति जाए. ભાષા જાય તો સંસ્કૃતિ જાય બાય ફાધર વાલેસ. ઠીક છે, જેમનો જન્મ 4th નવેમ્બર 1925માં થયેલ છે. ઓકે, તો ભાષા જાય તો સંસ્કૃતિ જાયનો પ્રકાર શું છે? નિબંધ. પ્રકાર શું છે? નિબંધ. આ ચેપ્ટરનું નામ શું છે? ભાષા જાય તો સંસ્કૃતિ જાય. એનો પ્રકાર શું છે? નિબંધ. અને એમના રાइटर कौन છે? फादर वालेस. एना राइटर कौन છે? फादर वालेस. तो अभी अपन राइटर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, लेखक के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर का ब्रीफ पढ़ के चैप्टर पैरा टू पैरा एक्सप्लेन करूँगी. ओके एवरीवन. सो चैप्टर का नाम क्या है? भाषा जाए तो संस्कृति जाए बाय फादर वालेस, જેનો પ્રકાર છે નિબંધ. अब फादर वालेस के बारे में पढ़ते हैं. फादर वालेस તેમનું પૂરું નામ કોલોસજી વાલેસ. કાર્લોસજી વાલેસ. તેમનો જન્મ લાગ્રોનો, સ્પેન થયો હતો. અમદાવાદની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાં ગણિતના અધ્યાપક તરીકેની કામગીરી કરી હતી. સદાચાર, વ્યક્તિત્વ ઘડતર, જીવન દર્શન, કોલેજ જીવન, ચારિત્ર્ય યજ્ઞ, સંસ્કાર તીર્થ, લગ્ન સાગર, ગાંધીજી અને નવી પેઢી, ધર્મમંગલ, સંસાર સાધના વગેરે તેમના મહત્ત્વના નિબંધ સંગ્રહો છે. તેમના ગુજરાતીમાં સાદગીની શોભા છે. તેમને ગુજરાત સાહિત્ય એકાદમી પુરસ્કાર તથા રણજીતરામ सुवर्णचंद्रक एनायत थया छे. ओके, तो अभी ब्रीफ में अपन इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं. काका साहेब कालेकરની જેમ જેને સવાયા ગુજરાતી કહી શકાય તેવા ફાધર વાલેસ આ નિબંધમાં ગુજરાતી ભાષાનું વાજબી મહત્ત્વ સ્થાપે છે. જ્યારે કોઈ ભાષા લુપ્ત થાય છે ત્યારે તેની તેની સાથે તે ભાષા બોલનાર સમાજની સંસ્કૃતિ પણ નષ્ટ થાય છે. એ વાત આ નિબંધમાં દર્શાવાઈ છે. પરદેશમાં રહેનારા ગુજરાતી લોકોના બાળકોને હવે તેમના પપ્પા ગુજરાતી બોલે કે મમ્મી ભારતીય સાડી પહેરે તે ગમતું નથી. લેખક કહે કે ભાષાની સાથે સંસ્કૃતિ પણ જાય છે. પરદેશ ખેડવાની સાથે મા બાપનો વિયોગ, કામનો અતિરેક, ઓછું કુટુંબિક જીવન, લઘુમતીના હોવાનું જોખમ તો છે જ, પરંતુ સંસ્કૃતિનો હાશ એ સૌથી મોટું જોખમ છે. ભાષા બચશે તો જ સંસ્કૃતિ બચશે. એ વિચારને લેખકે સચોટ રીતે આ નિબંધમાં મૂક્યો છે. अब अपन स्टोरी मेन स्टार्ट करते पैरा टू पैरा. ओके. મારી લંડનની એક મુલાકાત દરમિયાન હું એકવાર એક ગુજરાતી મિત્રને ઘેર એની સાથે વાતચીત કરતો હતો. અમે બંને ગુજરાતીમાં વાતો કરતા હતા. એમાં મિત્રનો મોટો દીકરો આવ્યો. કંઈક કહેવા ગયો પણ એમને ગુજરાતીમાં વાત કરતા જોઈને એ જરા ઊભો રહ્યો. મોં ઉપર અણગમો બતાવ્યો. પછી મારી હાજરીમાં જ પોતાના બાપને અંગ્રેજીમાં કહ્યું, ફાધરની સાથે શું કામ ગુજરાતીમાં બોલો છો? એમને અંગ્રેજી આવડે છે. અને गुस्साથી पीठ फेरवीने ત્યાંથી चाली गयो. मतलब क्या हुआ, एक बार वो अपने लंदन के एक फ्रेंड के साथ मिले तो उनके घर पे मिले तो वो दोनों गुजराती में बात करते. उतनी देर में वो जो फ्रेंड था उनका बड़ा वाला बेटा उधर आया तो उनने वो कुछ बोलने जा रहा था. उतनी देर में देखा कि गुजराती में उसके पापा बात कर रहे हैं. तो एक जैसे एकदम अलग सा होता ना कि नहीं पसंद आ रहा मुझे आप गुजराती में बात कर रहे हो. तो उसको ज़रा भी पसंद नहीं आता कि उसके पापा उनके फ्रेंड के साथ गुजराती में बात कर रहे थे. तो बोले कि इनके साथ गुजराती में क्यों बात करें, इनको ऑलरेडी गुजराती आती है. वो अपने पापा को क्या बोलते हैं? फादर मतलब अपने लेखक. तो बोले इनको इंग्लिश आती है तो इनके साथ गुजराती में क्यों बात कर रहे हो. ठीक है. और इतना बोल के गुस्से से निकल गया. બીજા ઘરમાં અમે બધા બહાર જવા માટે તૈયાર થતા હતા. ક્યાંક ફરવા જવાનો કાર્યક્રમ હતો. એમની મમ્મી આવી. એને એક સુંદર સાડી પહેરેલી હતી. મોટો છોકરો એની પાસે ગયો અને લાડ અને ફરિયાદના મિશ્રમ આવાજે બોલ્યો, મમ્મી સાડી ન પહેરે તો ન ચાલે. તું સાડી પહેરે ને એ મને બિલકુલ ગમતું નથી. જરા ડ્રેસ બદલી આવો ને. મમ્મીએ એને પંપાડ્યો અને મારી તરફ દુઃખદ નજરે જોયું. साड़ी तो नहीं बदली. मतलब क्या हुआ, वो दूसरे एक घर में गए तो उधर उन लोग का बाहर जाने का कोई प्रोग्राम था. तो उसने एक जो लेडी थी वो घर की, उसने साड़ी पहनी तो तुरंत उसका बेटा आया और मतलब बोलते ना मिक्सचर, प्यार से भी और गुस्से से भी.
मिक्स करके क्या बोला कि ये साड़ी मत पहनना, मुझे तो नहीं पसंद, तू साड़ी पहनते, ड्रेस चेंज कर लेना। तो उसने एकदम एकदम दुख भरी नज़रों से लेखक के सामने देखा, लेकिन साड़ी तो नहीं बदली। कि बच्चे आजकल कैसे हो गए, माँ साड़ी पहनती वो भी उनको पसंद नहीं आता। ત્રીજા એક ઘરમાં બહેનોનું મિલન હતું. એની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરવાની હતી. મેં સૂચવ્યું હતું કે અસત્યો માહિતી પ્રાર્થના સૌ બોલીએ, પણ યુવાન લોકોમાં કોઈને એ પ્રાર્થના મોડે ન હતી. સંકોચ તો ન હતો, પણ આવડતી જ ન હતી. પછી બોલે શી રીતે? છેવટે એક મોટી બહેને શરૂ કરી અને અમે બધાએ उपाड़ी। मतलब क्या हुआ, तीसरे घर में गए तो एक जो मेन प्रार्थना होती है, तो लेखक का क्या मन था कि सब लोग एक साथ बोले, लेकिन बच्चों को ये पोयम मतलब ये प्रार्थना आती ही नहीं थी। जो बड़े बुजुर्ग थे उनमें से एक लेडी को आती थी, फिर इन लोग खाली लेखक के जो उम्र के लोग थे उनने कंटिन्यू की, लेकिन जो यूथ जनरेशन था उधर का, उन लोगों को कुछ भी नहीं आता था वो पोयम के अंदर, तो कंटिन्यू भी कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में अपन ने गुजराती बोलने पे बच्चों को पसंद नहीं आता, दूसरे पैराग्राफ में बच्चे को माँ साड़ी पहनती वो पसंद नहीं आता, तीसरे पैराग्राफ में बच्चों को आजकल की प्रार्थना भी पता नहीं होती है कि क्या प्रार्थना है। आजकल के बच्चों को प्रार्थना भी पता नहीं होती कि उनकी प्रार्थना क्या है, मुँह पे नहीं होती, मतलब लर्न नहीं होती। ठीक है, चलो। उपनिषदની એ પ્રાર્થના વિશ્વવિખ્યાત છે અને દુનિયામાં શ્રેષ્ઠ પ્રાર્થના સંગ્રહોમાં એનું અગ્રસ્થાન છે. ગુજરાતની કોઈપણ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને આ પ્રાર્થના મોડે જ છે અને વિના સંકોચે બોલી શકે, પણ પરદેશની એ ગુજરાતી બાળાઓને એ આવડતી ન હતી. બોલાવીએ તો બોલે, પણ पोतानी मेड न बोले। मतलब क्या कि गुजरात के तो हर स्कूल के बच्चों को ये पोएम एकदम लर्न बाय हार्ट होती है, लेकिन जो आउट ऑफ इंडिया के बच्चे हैं उनको तो ये पोएम ज़रा उनको बुला दे तो बोल देंगे, पीछे पीछे सेम टू सेम रिपीट कर देंगे, बट उनको लर्न बाय हार्ट नहीं थी। साड़ी पण पश्चिमना भद्र समाजમાં એક રુચિકર પ્રતિશ્રેષ્ઠ કલાત્મક વેશ ગણાય અને ભારતીય સ્ત્રીઓ એમને આગવી ચટાતી સાડી પહેરીને આંતરરાષ્ટ્રીય सम्मेलनों जाए ત્યારે खूब शोभे અને खूब वनखाए। मतलब क्या बोले कि साड़ी पहनना भी अपना भारतीय संस्कृति का एक है, और भारतीय लेडीज़ जब आउट ऑफ इंडिया कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में जाती है, इवेंट्स में जाती है, तो स्पेसिफिकली साड़ी पहनती है, वो अपनी संस्कृति बताता है। ठीक है, साड़ी खरेखर शोभे છે અને પરદેશમાં પણ એની પ્રતિષ્ઠા છે, પણ પોતાની મમ્મી સાડી પહેરે એ પહેલાં લંડનવાળા ગુજરાતી છોકરાને ગમતું નથી। मतलब साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, साड़ी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो भी जब फ़ॉरेन के बच्चे, लंदन का बच्चा जब अपनी मम्मी को साड़ी पहनते देखता है तो उसको वो चीज़ पसंद आती नहीं है। એને મોટી વાત તે ભાષાની અને મોટી વાત તે ભાષાની પોતાના બાપને ગુજરાતીમાં બોલતા સાંભળીને દીકરો ગુસ્સો ચડે તો પોતે ગુજરાતીમાં બોલશે ખરો, વાંચશે ખરો, વાપરશે ખરો। मतलब क्या बोला है कि खुद के पप्पा गुजराती में बात करे, वो देख के अगर बच्चा इतना गुस्सा हो रहा है तो क्या लाइफ में वो कि कभी खुद गुजराती बोलेगा, कभी खुद गुजराती वर्ड्स का कभी उपयोग करेगा, कभी खुद गुजराती रीड भी करेगा। अगर उसके पप्पा बोल रहे उसको गुस्सा आ रहा है तो खुद तो कभी गुजराती को कंसिडरेशन भी नहीं देने वाला। થોડું ઘણી ગુજરાતી બોલે તો એને આવડે છે, થોડું ઘણું ગુજરાતી બોલે તો એને આવડે છે। નાનપણથી જ ઘેર સાંભળતો અને સ્કૂલમાં કે સ્કૂલની બહાર થોડું પણ શીખતો અત્યારે ગુજરાતી સમજે છે, અશુદ્ધ બોલે અને નહીં લખે એવી પરિસ્થિતિ છે। પરદેશમાં દેશી ભાષા सचवाती नहीं। मतलब क्या बोला कि उसको समझ तो आती है गुजराती और टूटी फूटी बोलनी आती है, प्रॉपर बोलनी भी नहीं आती, क्योंकि बचपन से घर में थोड़ा बहुत सुना हुआ है, स्कूल में जाते तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सुना हुआ है, लेकिन अब तो उसको ये ज़रा भी पसंद भी नहीं आती। और ऐसा फॉरेन कंट्रीज़ में देशी भाषा जो होती है, अपनी जो मेन भाषा होती है, अपना मदर टंग होता है, वो तो पूरा चला ही जाता है। अफ्रीकाना एक मुल्कમાં गुजरातीओनी वच्चे गुजराती भाषाने टकाववा एक प्रयोग कर्यो छे। गुजराती लखवामां घणाने तकलीफ पड़े माटे सरळ जोडणी अने सरळ नियमो अपनाव्या छे। बधी ई दीर्घ अने बधा ऊ हस्व जोड़ाक्षर नहीं,
અનુસ્વાર નહીં અને કોઈ ભૂલ હોય તો એ ભૂલ નહીં ગણાય. સારી સગવડ છે અને ઉદારતા છે. પ્રયોગ પાછળનો હેતુ પણ શુભ છે અને યોગ્ય છે, પરંતુ એથી કંઈ વળવાનું નહીં. ગુજરાતીને સરળ બનાવવાથી ગુજરાતી ટકવાનું નહીં. દીર્ઘ હાંસવાનો સવાલ નથી. ક ખ ગ ઘનો સવાલ છે. ક ખ ગ ઘનો સવાલ છે એટલે કે આખી ભાષાનો સવાલ છે. જે જાય તો જાય અને टके तो टके ने परदेश में ये नहीं टके. मतलब अफ्रीका में क्या किया, इन लोगों ने क्या बोला कि ऊ ई इन लोग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करने का. बड़ी ऊ बड़ी, छोटा ऊ बड़ी ई छोटी ई, इन सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करने का, खाली नॉर्मल बोल रहे हैं. इसका पीछे का मोटिव तो अच्छा था, लेकिन गुजराती भाषा ऐसी है जो इन सब के बिना अच्छे से टिकने वाली है नहीं. मतलब क्या, इन सब के बिना वो अधूरी हो जाती है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो पर नहीं बोली जाती. तो लेखक ने अल्टीमेटली क्या कंक्लूड किया, गुजराती फॉरेन कंट्रीज़ में तो कोई टिकने वाली है नहीं. પરદેશના ગુજરાતીઓના આમંત્રણથી તેઓ વસે છે અને અનેક દેશમાં હું ગયો છું, એમની જોડે રહ્યો છું, ચર્ચાઓ કરી છે, વ્યાખ્યાનો આપ્યા છે. એમને સીધી વાત કરવાની હજુ સુધી મારી હિંમત ચાલતી નહોતી. મને બોલાવે, બધી સગવડ કરી આપે, ઉત્તમ આતિથ્ય કરે, એટલે હું સૌને સારું લગાડીને બોલતો અને ગુજરાતીને ટકાવવા જે કંઈ પ્રયત્ન કરે તે ખૂબ વખાણતો. मतलब क्या बोला कि वो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में घूमे, बहुत से व्याख्यान मतलब स्पीचेस देते थे, लेकिन डायरेक्ट बोलने की तो लेखक की भी ताकत नहीं थी कि तुम गुजराती भाषा को नहीं यूज़ करो, तुम्हारी संस्कृति जा रही है. सब लेखक को डायरेक्ट बोलने की ताकत नहीं थी. वो जो भी करते थे उनको अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि वो एफर्ट्स तो डालते थे, वो एफर्ट्स डालते थे एंड वो जो एफर्ट्स डालते थे उसको वो अप्रिशिएट कर लेते थे. वो उनके लिए सब सगवड़ करके रखते थे. वो आते थे ना, जब लेखक आते थे तो उधर के क्राउड उधर उनके लिए सब सगवड़ करके रखते थे. જરૂર ઘરમાં નાના છોકરાઓની જોડે ગુજરાતી બોલે, સ્કૂલમાં એનો અભ્યાસ દાખલ કરાવી શકો તો કરાવે અને એ બને અને ન બની શકે તો સ્કૂલના સમય પછી સ્કૂલના મકાનમાં ભણાવો. દેશથી ગુજરાતી માસિકો મંગાવો, ગુજરાતીમાં પ્રવચનો ગોઠવો, ગુજરાતી ભજનો ગાઓ. એ રીતે જરૂર ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ સાચવી શકશે અને એના લાભ તેમને મળતા રહેશે. હવે હિંમત આવી ગઈ છે એટલે સીધું કહું છું, આ બધું સારું છે પણ નકામું છે. આ બધું સારું છે પણ નકામું છે એટલે કે એથી ગુજરાતી તમારે ત્યાં ટકવાનું નથી ને એનું ગૌરવ સાચવાનું નથી ને એના લાભ મળવાના નથી. ખોટી ભ્રમણા ન સેવો. ગુજરાતી તમારા ઘરોમાંથી જાય જ છે. બહુ તો 1-2 પેઢી થોડું રહેશે, 2 પેઢી પછી નામ નિશાન નહીં રહે. એ હકીકત છે, જાણવી જોઈએ ને કહેવી જોઈએ. ખોટું આશ્વાસન આપવા, એકબીજાને સારું લગાડવાનો પ્રયત્ન व्यर्थ છે. मतलब क्या, पहले वो स्टार्ट तो ऐसा ही करते कि सब कुछ अच्छा उनके अप्रिशिएट करते हैं, उनके एफर्ट्स को. उसके बाद वो थोड़ा बोलना शुरू करते हैं. पहले क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम ज़्यादा नहीं तो तुम्हारे जो इंडिया के गुजरात प्रदेश है, गुजराती की बुक्स मंगवाओ, गुजराती भजनों गाओ. ये सब से थोड़ी बहुत तो संस्कृति अंदर रहेगी बच्चों के अंदर. फिर वो बोलता है ये सब थोड़ा टेम्पररी है, तुम्हारा जिस हिसाब से एटीट्यूड दिख रहा है. फिर वो बहुत क्लियर बोलते हैं कि तुम्हारा जिस हिसाब से एटीट्यूड दिख रहा है, लगता नहीं कि गुजराती बहुत टाइम तक टिकने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम 1 या 2 पीढ़ी, उसके बाद तो तुम्हारे इधर गुजराती टिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. क्योंकि कितना भी तुम एफर्ट्स डालो, तुम्हारे इधर जो नेक्स्ट जनरेशन्स आ रहे हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ सीख ही नहीं रहे उसके बिना. तो तुम्हारे 2 पीढ़ी के बाद कोई भी नामो निशान नहीं रहने वाला ये लैंग्वेज का. क्लियर. फिर लेखक बहुत क्लियर उनको बोल देते हैं. હમણાં પરદેશ જઈ આવેલા એક આત્મીય ગુજરાતી સાક્ષરની સાથે વાતચીત થતી હતી, એમાં આ વાત નીકળી. તેઓ ભારપૂર્વક કહેતા, પરદેશમાં વસતા આપણા ભાઈઓએ જેમ તેમ કરીને ગુજરાતીનું જ્ઞાન ચાલુ રાખવું પડશે, નહીં તો એ લોકો નરસિંહ મીરાને, અરે સુંદરમ રાજેન્દ્ર મકરંદને કેવી રીતે વાંચશે? મેં ધીરેથી કહ્યું, વાંચતા જ નથી અને મીરા નરસિંહ વિશે તો હજીએ જાણે, પણ સુંદરમ રાજેન્દ્ર મકરંદ વિશે
પરદેશમાં જન્મેલા ગુજરાતી યુવાનોને પૂછો તો એમના નામ પણ સાંભળ્યા नहीं હોય, પછી વાંચવાની વાત क्या रही। मतलब क्या बोला कि मीरा और ये किसी गुजराती इंसान से, मतलब जो परदेश में रहते, परदेश में एक इंसान जाके आया, मतलब क्या फॉरेन कंट्री में एक इंसान जाके आया, उससे लेखक की बात हुई तो उसने क्या बोला कि परदेश में तो अपने जैसे भाई, अपने जो गुजराती भाई है उनमें गुजराती का कुछ ज्ञान ही नहीं बचा है। मीरा, नरसिंह मेहता, सुंदरम, राजेंद्र, इन सब के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है जैसे वो। तो लेखक ने क्या बोला, मीरा और नरसिंह मेहता के बारे में तो फिर भी जानते हैं, लेकिन ये जो सुंदरम, राजेंद्र, मकरंद, इन सब के बारे में तो जैसे उन्होंने नाम भी कभी नहीं सुना हो, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं। कोई कहेशे કે ભાષા જાય તો ભલે જાય, એમાં શું ને અંગ્રેજી ક્યાં ખોટી ભાષા છે કે બીજાની જરૂર પડે, गुजराती जाए तो भले जाए, चला भी लइए। मतलब क्या बोला कि है ना, लैंग्वेज ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है ये लैंग्वेज बोले कि वो लैंग्वेज बोले। लोग ऐसा बोलते हैं उधर के, लेखक नहीं। लेखक तो बहुत प्योरली ये बोलना चाहते हैं कि गुजराती गई, लैंग्वेज जाती है तो संस्कृति जाती है, ठीक है। तो उधर के लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज ही तो चेंज हुई, गुजराती के बदले इंग्लिश बोल रहे, फ़र्क क्या पड़ रहा है। ભાષા અને સંસ્કૃતિ એકબીજાની સાથે એવી તો સંકળાયેલી છે કે એક જાય તો બીજી જાય। ભાષા એ સંસ્કૃતિનો તત્વ વાહન નથી, એની સાથે ઓતપ્રોત છે, વર્ણાયેલી છે, એક થયેલી છે। આર્ય સંસ્કૃતિ, આર્ય ભાષાઓ જ ટકે। એક પ્રયોગ કરવો હોય તો ગીતાજીના સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણો તમે ગુજરાતીમાં બોલો અને સંસ્કૃત આવડે તો સંસ્કૃતિમાં, ત્યારે દિલમાં અનેરો આનંદ, શાંતિ, સાતિત્વનો અનુભવ કરો છો। અંગ્રેજીમાં વાંચો ત્યારે એવું કશું લાગતું નથી। ભાષાનો પ્રભાવ છે, ભાષાનું જોડ છે, તે જ સંસ્કૃતિમાંથી આવી છે, એની સાથે એકરૂપ થયેલી હોય છે। માટે એ જો जाए तो एना संस्कारों पण घसाड़ीने लई जाए। मतलब क्या बोला, भाषा और संस्कृति बहुत लिंक्ड है एक दूसरे से। अगर भाषा आती है तो संस्कृति आती है। गीता के श्लोक्स, अगर तुम गीता के, भगवत गीता की बात की है कि अगर तुम उनके श्लोक्स पढ़ो तो संस्कृत में पढ़ो या गुजराती में पढ़ो तो तुम शांति फील कर सकते हो, खुशी फील कर सकते हो। लेकिन वही श्लोक्स अगर तुम इंग्लिश में पढ़ो तो तुमको कोई मज़ा ही नहीं आएगा, फील ही नहीं आएगा उस चीज़ को पढ़ने का। तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो भाषा का इम्पोर्टेंस है। भाषा का इम्पोर्टेंस है कि उस चीज़ का फील आता है। तो भाषा नहीं है तो संस्कृति भी नहीं है। गुजराती भाषा जाए तो संस्कृति पण साथे लई जाए, ये कई ओछું जोखम नहीं। मतलब ये भी बहुत रिस्की है, बिकॉज गुजराती अगर भाषा जाएगी तो संस्कृति को भी साथ में ले जाएगी। मतलब दोनों नहीं रहेंगे कोई इंसान में। मारी मूળ વાત ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કહું, તમે પરદેશમાં ન જાઓ એમ હું નથી કહેતો, ત્યાં ન રહો એમ પણ નથી કહેતો। તમારી ઈચ્છા હોય તો જરૂર જશો અને જરૂર રહેશો, પણ જશો તો પૂરો વિચાર કરીને જશો, રહેશો તો પૂરો વિચાર કરીને રહેશો। શું મળે ને શું જાય, શો લાભ છે અને શું નુકસાન છે, શાની આશા છે અને શાનો ચોક્કસ ભારે મોટો ભોગ છે, એ બરાબર જોજો। જમા ખાતે ઠીક રકમ છે પણ ગયા ખાતે કઈ ઓછી રકમ નથી, બંને पक्ष बराबर तपासजो। मतलब क्या बोला कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ कि तुम प्रदेश में जाओ, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ या फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर रहो। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, तुम जाओ, तुम्हारी इच्छा है तुमको जाना है कि नहीं जाना, तुम रहो, तुम्हारी इच्छा है कि तुमको रहना है कि नहीं रहना। पर उससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो तुमको खुद देखना है। जितना फ़ायदा है तो शायद नुकसान भी उतना ही ज़्यादा है। પછી જવું હોય તો જરૂર જજો, આંખો બંધ કરીને નહીં જાઓ। બીજાઓના અનુકરણથી, ફેશનના જોડથી, પૈસાના મોહથી, प्रतिष्ठाની भूख तो नहीं जाओ। मतलब तुम अगर जाना है तो जाओ, लेकिन आंखें बंद करके मत जाओ। देखो, रियलिटी को देखो कि क्या है। तुम किसी के और को देख देख के, फैशन के लिए, पैसे के लिए, मतलब रुपीज़ के लिए, या अपना स्थान ऊंचा दिखाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए मत जाओ। અને સાચા કારણથી જવાનો વિચાર કરશો ત્યારે પણ જવાને કેવા ગેરલાભ છે એનો પણ पूरा ख्याल करो। मतलब अगर जाने का सोच रहे हो तो उससे क्या तुमको नुकसान है उसका भी पूरा इवेल्युएट करो। माँ बापનો વિયોગ, કામનો અતિરેક, ઓછું કુટુંબિક જીવન, લઘુમતીના જોખમ, સંસ્કૃતિનો હાસ, યાદ રાખો
કે તમને પ્રિય છે એવી કેટલીક વસ્તુઓ તમારે માટે નહીં તો તમારા દીકરાઓ માટે તો જશે. મમ્મીની સાડી જશે, પપ્પાની ભાષા જશે, ઉપનિષદની પ્રાર્થના પણ જશે. એ તમને गमशे खरू. मतलब तुमको इस चीज़ से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, बहुत सारी चीज़ें तुमको त्याग करनी पड़ेगी. मम्मी पापा से दूर रहना पड़ेगा, काम में मतलब एकदम काम अतिरेक मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कौटुंबिक जीवन कम हो जाएगा, मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कम हो जाएगा, संस्कृति पूरी निकल जाएगी. लोगों को लोग उस मतलब तुम्हारे बच्चों के तुम लोग अगर गुजराती में बात करोगे तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा. तुम्हारी वाइफ अगर साड़ी पहनेगी तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा. उनको प्रार्थनाएं लर्न नहीं होगी. ये सब क्या तुमको पसंद आएगा? लेखक पूछ रहे. क्या ये सब तुमको चलेगा? क्लियर. तो ये पूरा चैप्टर क्या है? भाषा जाए तो संस्कृति जाए. उनके लेखक कौन है? फादर वालेस. और इनका प्रकार क्या है? निबंध. ये पूरा चैप्टर क्या बोलना चाहता है कि अगर भाषा की इज्जत नहीं करोगे, अगर भाषा नहीं रहेगी तो संस्कृति भी नहीं रहेगी. फॉरेन कंट्रीज़ में जो अपने गुजराती पीपल रहते हैं उनके बीच में अभी अपनी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस कम होता जा रहा है. एंड शायद 1 या 2 पीढ़ी तक टिकेगा, उसके बाद तो पूरा ही जैसे ख़त्म हो जाने वाला है. क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो बच्चे आज की यूथ जो जनरेशन है उनको ये सब संस्कृति पसंद नहीं आती. उनको अपने देश की प्रार्थनाएँ भी लर्न नहीं रहती जो गुजरात के एक बच्चे के मुँह पे होती हैं. ठीक है. तो ये जो अपना दुख बता रहे हैं कि कैसे अपनी लैंग्वेज का नाश होता जा रहा है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर. तो अगर फॉरेन कंट्री जाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम क्या चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हो किस चीज़ के गेन के बदले. ठीक है. सो गुजरात, गुड बाय एवरीवन. विल एंड दिस lecture by this chapter and we'll continue with the next poem in the next lecture. Goodbye. Hello students, this is Etal Bhandari from HR.